Hello student, welcome to all in the online teaching learning on unit 2, that is water resource management and sanitation. The weightage of this unit is 16 mark. In this video lecture we will discuss about the watershed management structure. Now first we will discuss the learning outcome, course outcome and program outcome. The CO map from this unit is CO2, that is identify the need of watershed management in rural areas. And then PO map, PO1 is map, that is basic knowledge. From this topic we will learn the basic knowledge about like solving mathematics and science engineering problems. PO2, that is discipline knowledge, will be gained from this video to solve the engineering problems. Then PO5 is map, that is the engineering and society. Then PO6 is map, that is environment and sustainability. Then PO8, that is individual and teamwork. Then PO9, that is communication. And then PO10, that is lifelong learning. So these are all the PO mapped by this video lecture. Now after completion of this video lecture, students will able select the relevant watershed management structure in the given site condition. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcome. Now first we will see what is watershed management structure. कि watershed management structure होता क्या है? How will you define the watershed management structure? For the supplying water to rural areas to fulfill the various demand of water, the different types of structure are constructed and these structure are used to store the water and divert it to different routes to fulfill the demand of water in villages. watershed management जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्यों यूज किया जाता है? फॉर दी फुलफिल द वेरियस वाटर डिमांड इन विलेजेस। जो भी रूरल एरियाज में जो डिमांड्स होती है वाटर्स की, लाइक ड्रिंकिंग पर्पस, वॉशिंग पर्पस या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो भी डिमांड रहती है उसे फुलफिल करने के लिए ये वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन दिस स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। अब इसके अंडर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा केटी वियर। केटी वियर इज नथिंग बट कोल्हापुर टाइप वियर. It is again under the watershed management structure. Then gabion structure, then contour budding, farm pond and then underground bandhara. So these are all the watershed management structure. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि केटीवेयर क्या होता है, गेबियन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटूर बडिंग क्या होता है और फार्म पॉन्ड क्या होता है, ये कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। नाउ फर्स्ट केटी वियर। अब केटी वियर क्या होता है ये देखते हैं हम। इट इज अ कॉन्क्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर टू स्टोर वाटर बिहाइंड इट। ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है केटी वियर? या तो कॉन्क्रीट से या फिर मैसनरी से। कहाँ पर? अक्रॉस दी रिवर टू स्टोर दी वाटर। ये रिवर के अक्रॉस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू स्टोर दी वाटर। देन These structures were first constructed in Kolhapur district as a part of watershed management in Maharashtra. सबसे पहले इस टाइप का वियर कहाँ कंस्ट्रक्ट किया था हमने? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में है, अंडर दी वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तभी से इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम केटी वियर के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कोल्हापुर टाइप वियर। देन दिस स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स, गेटेड एंड अनगेटेड। ये भी जो स्ट्रक्चर होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक में गेटेड होता है, एक में अनगेटेड। गेटेड मीन्स
उसमें गेट्स होते हैं, यदि एक्सेस वाटर यदि स्टोर होता है तो हम उसको फ्लो कर सकते हैं, और जो एक अनगेटेड होता है जिसको हम जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है वो हम उतना ही स्टोर कर सकते हैं, या फिर वो ओवरफ्लो होता है हम उसे फ्लो नहीं कर सकते। देन gated structure are provided with needle of MS plate. MS plate is nothing but MS plate, ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, दैट इज mild steel. Mild steel plate can be removed or fitted to rise or lower level of store of water behind it. अब जो गेटेड स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, नीडल्स किए जाते हैं माइल्ड स्टील के, ठीक है, विच कैन बी रिमूव, जो रिमूव और फिटेड होते हैं एक तो राइजर और लोअर लेवल ऑफ स्टोर ऑफ वाटर। तो दीज आर ऑल अबाउट दी केटी वेयर। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ केटी वेयर। इसमें आप जो देख रहे हैं सेकेंड पिक्स में, ये आपका एग्जाम्पल है गेटेड केटी वेयर का, जिसमें जो आप देख रहे हैं वहां पे 3 गेट्स लगे हुए हैं। जब भी हमें ऐसी कंडीशन आती है कि हमें जो वाटर है वो ज़्यादा स्टोर हो चुका है या फिर एक्सेस हो चुका है, तो हम उस गेट को इजीली रिमूव कर सकते हैं। देन अब हम देखेंगे गेबियन स्ट्रक्चर क्या होता है। गेबियन वॉल इज ए रिटेनिंग वॉल मेड ऑफ स्टैक स्टोन फिटेड गेबियन टाइट टुगेदर विथ वायर। अब गेबियन स्ट्रक्चर क्या है, इट इज वन ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इट इज अगेन रिटेनिंग वॉल, लेकिन कहाँ पे, स्टैक स्टोन, स्टैक्स मतलब ढेर जिसे कहते हैं हम, स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थर का जो ढेर होता है उसे हम प्रॉपरली फिट करते हैं, और उसे उस स्टोन्स को हम किससे टाइट करते हैं, विथ वायर से। देन गिबियन वॉल इज यूजली बैटर्ड और स्टेप बैक विथ स्लोप रेदर देन स्टेप वर्टिकली। अभी जो हम स्टेपेड बैक जो हम लगाने वाले हैं वो कैसा होगा, स्लोप की जगह पे हम वर्टिकली लगाते हैं, ठीक है। अब देन गेबियन स्ट्रक्चर इज ए सिलेंडर और बॉक्स फिटेड विथ रॉक्स कॉन्क्रीट एंड समटाइम सैंड। अभी जो गेबियन स्ट्रक्चर ये आपको दिखने में कैसा लगेगा, लाइक एज ए सिलेंडर और यू कैन से बॉक्स। अब उस बॉक्स में क्या क्या फिल करते हैं, कभी कभी हम रॉक्स फिल करते हैं, समटाइम्स कॉन्क्रीट, सैंड और सॉइल। जितने भी हम मटेरियल देख रहे हैं, जो भी हमें उस एरियाज में अवेलेबल है, हम वहाँ पे उस गेबियन स्ट्रक्चर में फिल करते हैं टू स्टोर दी वाटर। देन गेबियन स्ट्रक्चर स्टोर वाटर फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम्स। अब ये जो गेबियन स्ट्रक्चर में जो भी वाटर स्टोर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द नेचुरल स्ट्रीम से, ऑन इट्स अपर स्ट्रीम साइड, and this water is used for rural areas for drinking and washing purpose। अब जो भी ये वाटर हम स्टोर कर रहे हैं ये कौन यूज करता है, रूरल एरियाज में, किस पर्पस के लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वॉशिंग और वी कैन से अदर पर्पस के लिए, लाइक एग्रीकल्चर पर्पस या फिर फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द गेबियन स्ट्रक्चर। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टैक्स ऑफ स्टोन लगा हुआ है और आपको जाली भी दिख रही है, और इसके अक्रॉस मतलब बैक साइड में आपका जो वाटर है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। जिससे कि आप सेकेंड पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे गेबिन के कारण जो स्ट्रीम है उसका वाटर स्टोर किया हुआ है, और जो साइड्स में जो फार्म्स हो रहे हैं वहां पे वो इजीली वो वाटर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंटूर बडिंग। कंटूर बडिंग क्या होता है, कंटूर बड्स आर इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर इन वाटरशेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब इट इज अगेन वन ऑफ द watershed management structure, and it is most effective to conserve soil moisture in watershed for long duration compared to other watershed। ये एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम किसे सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। देन कंटूर बंड आर सुटेबल इन लो रेनफॉल एरियाज। ये कहाँ सुटेबल है मेथड, सबसे ज्यादा जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहां पे ये मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है। देन स्पेसिंग बिटवीन टू कंटूर बड्स डिपेंड्स ऑन स्लोप
द एरिया एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अब स्पेसिंग बिटवीन टू कंटूर बर्ड्स, सपोज एक एरिया है जहाँ पे हमने 5 से 6 कंटूर बर्ड्स लगाए हुए, उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन दी स्लोप ऑफ एरिया एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ये दो फैक्टर के ऊपर में बिटवीन टू स्पेसिंग डिपेंड करती है। देन कंटूर बंड इज सुटेबल ऑन लैंड विथ मॉडरेट स्लोप इन्वॉल्विंग ट्रैकिंग। अब अगेन ये कंटूर बंड कहाँ सुटेबल है? लैंड के ऊपर में, जहाँ पे हम मॉडरेट स्लोपिंग देते हैं, वहां पर ये कंटूर बर्ड्स ज्यादा सुटेबल है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी कंटूर बर्ड्स। अब यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कंटूर बर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यदि हम बात करते हैं तो डेट इज पानी फाउंडेशन ने जो मुहिम चलाई थी, उन्होंने जो मराठवाड़ा में है जहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है, वहाँ पे कंटूर बर्ड का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने कंडक्ट किया हुआ था। सेकेंड पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से वो लोग कंटूर बंडिंग करते हैं जहाँ पे स्लोपिंग एरियाज है, उसी एरियाज में, मतलब जहाँ पे लो रेनफॉल एरियाज होते हैं। देन फार्म पॉन्ड, इट इज अगेन वन ऑफ दी वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? एक वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है हम देखते हैं। अ फार्म पॉन्ड इज ए लार्ज होल डक आउट इन दी अर्थ। एक फार्म पॉन्ड क्या है? एक बहुत बड़ा होल डक है, मतलब एक गड्ढे टाइप बोलेंगे जिसे हम, ठीक है, कहाँ पे? इन दी अर्थ। इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये या तो स्क्वायर हो सकता है शेप में या फिर रेक्टेंगुलर होगा। इट हार्वेस्ट रेन वाटर एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ये क्या करता है? रेन को स्टोर करता है फॉर दी पर फ्यूचर यूज के लिए। अब वो यूज कोई भी हो सकता है, लाइक एग्रीकल्चर के लिए, और वी कैन से वॉशिंग पर्पस के लिए। इट हैज इनलेट टू रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर। अब इसमें क्या होता है? दो वॉल होते हैं, एक तो इनलेट होता है और एक तो आउटलेट होता है। इनलेट का काम क्या होता है? टू रेगुलेट इनफ्लो, जो फ्लो अंदर आ रहा है उसको रेगुलेट करना, और आउटलेट का जो फ्लो होगा वो कौन रेगुलेट करता है? आउटफ्लो। ये क्या करता है? जो एक्सेस वाटर हो गया है, मतलब जो हमारी लेवल है उससे ज्यादा अगर वो वाटर वहां पे स्टोर हो गया है, तो वो क्या करता है? उस एक्सेस वाटर को बाहर फ्लो कर देता है। Then the farm pond is surrounded by small buds which prevent erosion on the bank on the pond. अब ये फॉर्म के अराउंड में भी एक क्या होता है? एक स्मॉल बंड होता है। उसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट इरोजन ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड। जो हमारा फार्म पॉन्ड है उसके सराउंडिंग में एक ऐसी लेयर बिछाई जाती है सॉइल की, जिसके कारण जो सॉइल इरोजन है उसको रोक सके। The side of pond should be sloped or suitable. So these are all about the farm pond. अब फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फार्म पॉन्ड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसने बैंक्स दिया हुआ है सराउंडिंग्स में, ठीक है। ये यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने क्या है? फार्म पॉन्ड को डिवाइड किया हुआ है और वाटर को स्टोर किया हुआ है। देन एडवांटेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब जितने भी हमने वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, वो हो सकता है आपका केटीवेयर हो, गेबियन स्ट्रक्चर हो, कंटूर बंड हो, या फिर फार्म पॉन्ड हो। अब इसके एडवांटेज क्या है अब हम देखते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस। इस वाटरशेड मैनेजमेंट जो स्ट्रक्चर है इनका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। स्ट्रक्चर आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इजी होते हैं। स्ट्रक्चर आर इजी टू मेंटेन, जो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका मेंटेन और मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इज लेस, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वाटरशेड मैनेजमेंट वो लेस होता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स वाटर कंजर्वेशन इफेक्टिवली, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन को इफेक्टिवली स्टोर करते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर,
ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ये और क्या हेल्प करते हैं हमें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उसे भी इंक्रीज करने के मदद करते हैं। इट इंक्रीज राइज इन वाटर लेवल इन वेल्स एंड बोरवेल्स। ये अगेन हमारे जो वेल्स होते हैं या फिर बोरवेल्स होते हैं इनका वाटर लेवल भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। So these are all about the first video. Now we will see the summary of this video lecture. After watching this video lecture, students are understand about the basic of watershed management structure and their types. हमने पहले watershed management structure क्या है ये देखा, then उसके types देखे हमने, then KT ware structure देखा हमने, then concept of Gibbon structure and contour budding देखा है, then construction and basics of farm pond. Thank you.